Amen. Okay. Oh, Heavenly Father, Thank you, Jesus. मेरे परमेश्वर आसमानी बाप, we do bring the pastor's family to you. मैं आपके समीप पास्टर के परिवार को रखता हूँ, And his precious mother we commit into your hands, Lord. परमेश्वर इनकी माँ को आपके हवाले करता हूँ। Lord, we just give her to you and ask you to watch over her, Lord, watch over the family. परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपनी उनकी और उनके परिवार की निगरानी करेंगे। We commit it all to you, Father. ये परमेश्वर हमने आपके हाथ में छोड़ दिया है। And we commit our Bible study to you as well, Father. Yes, Lord. परमेश्वर, अभी हम आपके ये बाइबल क्लासेस आपके हाथों में सौंपते हैं। We pray in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Go ahead, Pastor. Thank you. Well, we're going to talk about 1st and 2nd Chronicles today. आज हम पहला और दूसरा इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। And originally they were just one book, 1st and 2nd Chronicles, just one book. पहले ये पहला और दूसरा इतिहास एक ही किताब थी। I just want to tell you a story before I talk about Chronicles. इतिहास के अध्याय से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। There was a famous missionary called Hudson Taylor. एक बहुत प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय मिशनरी जिसका नाम हडसन टेलर था। He went to hold a meeting for some of his supporters. और वो उसने एक दिन मीटिंग्स अरेंज की। And after he'd spoken, a man came up to him. और सभा खत्म होने के बाद एक व्यक्ति उसके पास आया। And the man was asking him about a particular mission station. और उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि आपका मुख्य उद्देश्य मिशन का क्या है? And the man said all kinds of questions. He knew so much about the mission station. और उसने बताया कि मेरे पास बहुत सारे मिशन के केंद्र हैं। And Hudson Taylor said to the man, "How do you know so much about this mission station in China?" और उसने कहा, आपको हमारे मिशन के बारे में कैसे पता है जो कि चाइना में चल रहे हैं? Well, he said, the missionary there was a friend of mine. We went to college together. और उसने बताया कि मुझे मेरे दोस्त से पता चला जो कि वो मिशनरी है, वो मेरे साथ पढ़ता था। And I pray for him every day. और मैं उसके साथ हमेशा प्रार्थना करता था। He sends me details of people who are interested in Jesus. और वो मेरे पास नाम भेजा करता था जो कि यीशु में से प्रेम को अगुवाई करना चाहते हैं, यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। And I pray for them every day. और मैं हर रोज परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करता था। And Hudson Taylor was amazed. और हडसन टेलर जो एक पूर्ण स्थान का रहस्य था। Because this mission station was so blessed and growing and doing well. और उसके जो मिशनरी स्टेशन थे, स्थान थे, वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही काम करने वाले स्टेशन थे, स्थान थे।
And Hudson Taylor said, well, that is the secret of revival when you've got a Oh. praying saint. और उसने कहा कि ये एक बहुत अच्छी बात है, पूर्ण स्थान है और एक ये संत के घर में. It says in 2 Chronicles chapter 7. दूसरा इतिहास 7वां पाठ में लिखा है, The glory of the Lord filled the temple. लिखा है, मैं मंदिर के समर्पण पर याजक रहता हूं. And King Solomon prayed and fire came down from heaven. और सुलेमान ने प्रार्थना की और अग्नि उसके ऊपर उतर पड़ी. When we pray, wonderful things can happen. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसी अद्भुत चीजें हम पर भी हो सकती हैं. And we see in the book of Chronicles when the people prayed, God heard and answered. और जब हम इन इतिहास की पुस्तकों में देखते हैं, अद्भुत जानकारी मिलती है कि लोगों ने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुन ली गई. The book of Chronicles is from about 1,000 years before Jesus to 600 years before Jesus. और ये कहानी इतिहास 1000 ईसा पूर्व से पहले और 610 ईसा पूर्व तक लोगों में ने लिखा है. And the main people were King Saul, King David, और उसमें मुख्य लोग साउल, दाऊद, and then King Solomon and Hezekiah. सुलेमान और हिजकिय्याह. And the big message of Chronicles is that obedience is the way to great blessing. और सबसे मुख्य जानकारी ये है कि वहां पर परमेश्वर के महान आशीर्वाद का मार्ग है. And here's a little summary of the book of First Chronicles. और यहाँ ये छोटी सी सारांश पहले इतिहास के बारे में संक्षिप्त में लिखा है. It starts with a list of all the different families related to King David. और ये शुरुआत में पूरे परिवार के सदस्य के बारे में बताया है, दाऊद के पूरे सदस्य के लोगों के बारे में दर्शाया गया है. And a list of all the Jewish families and their names and their children. सारी जो संख्याएं दाऊद के बारे के सदस्यों के बारे में बताया गया है. And then it talks about the stories in David's life. और उसके बाद दाऊद राजा के जीवन के बारे में सारे चित्रित किया गया है. But because of sin, the people went away to be captives in a strange land. और पाप बढ़ने के कारण लोग एक ऐसी अजनबी जगह पर चले गए. But when you come to the end of 2 Chronicles, you find they're going to go home again. और दूसरे इतिहास में हम देखेंगे कि वो दोबारा अपने घरों को वापस आ गए. The big lesson is that God wants to restore people. सबसे बड़ी बात हमने सीखी कि परमेश्वर हमें दोबारा बुलाना चाहता है. Here's some of the things which happened in First Chronicles. ये सब चीजें पहले इतिहास में लिखी गई हैं. First of all, King Saul died. पहली बात कि राजा साउल मारा गया.
King David became king. और उसके बाद दाऊद राजा बन गया। David had a lot of victories in battle. और दाऊद की बहुत राज्यों में विजय हुई। And then Solomon, the son of David, became king. और उसके बाद सुलेमान जो दाऊद का बेटा था वो राजा बना। And he built a beautiful temple. और उसने एक बड़ा सुंदर मंदिर का निर्माण किया। After Solomon, there were good and bad kings. सुलेमान के बाद कुछ अच्छे और बुरे राजाओं का आगमन हुआ। And then they were getting so bad, God sent them into exile in Babylon. और इन लोगों ने बहुत यहूदियों को बाबुलोन में बंधुआई भेज दिया गया। But when you come to 2 Chronicles, God in his mercy says they can start to go back home again. और दूसरे इतिहास में हम देखते हैं परमेश्वर ने इनकी पुकारों को सुना और उन्हें फिर से घर वापस बुला लिया। There's a very important verse in 2 Chronicles. एक हम इसको देखते हैं दूसरे इतिहास में। This is in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. और हम इससे देखते हैं उसके देश को चंगा करो इतिहास दूसरा इतिहास 7वां पाठ 14 आयत में लिखा है। And God says, if my people will humble themselves. अगर परमेश्वर ने कहा अगर मेरे लोग दया से भरे हुए होंगे, if they will pray, और अगर वो प्रार्थना करेंगे, God says he'll listen. परमेश्वर ने कहा तुम सुनो, and he'll do something else, he'll heal the land. और तुम पूरी चंगाई पाओगे पूरी पृथ्वी पर। And that's the same today. और ऐसा आज हो रहा है। That's the same in your life today. और आपके जीवन में भी ऐसा ही चल रहा है। When you humble yourself before God, जब आप प्रभु के सामने नम्र हो जाते हैं, and you pray to him from your heart, और जब आप अपने हृदय से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, then he'll listen, और परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, and he'll bring great blessing into your life. और आप देखेंगे कि आपके जीवन में नई आशीषें मिलने लग रही हैं। There are some great pictures or types of the Lord Jesus in 1 and 2 Chronicles. और हम इसको यीशु मसीह के चित्रण से पहले और दूसरे इतिहास में देखते हैं। In 1 Chronicles we read about the death of King Saul. पहले इतिहास में हम साउल की मृत्यु, राजा साउल की मृत्यु को देखते हैं। And you know, I think of King Saul like he's the old king who ruled in our life. और हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि ये पुरानी जिंदगी है जो हमारी पुरानी जीवन में दिखाई देती है। He started well, but then he disobeyed God. उसने शुरुआत में परमेश्वर से प्यार किया, मगर अंत में उसने प्रभु का उल्लंघन किया। I've known many people, they've started well, but after a while they turned. और बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर से शुरुआत में बहुत प्यार करते हैं, मगर आकर वापसी हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। In the New Testament, we read about the old ruler, the prince of the power of the air. और नए नियम में हमारे पास एक पुराना हवा की शक्ति का राजकुमार शासन देखा गया है। He ruled our lives through the old nature. और उसने पुराने स्वभाव में पुरानी समृद्धि पापी के कारण सारे जगहों को राज कर लिया।
we had an old selfish nature. उसके अंदर हमारे अंदर पुराना सेल्फिश स्वभाव है, But through the death and resurrection of Jesus, the old nature was conquered. और प्रभु यीशु की मृत्यु से और उनके पूर्ण स्थान से हमारे सारे पुराने व्यवहार खत्म हो गए हैं। It says Amen. says in the book of Romans, our old self, our old man was crucified with him. और पुराने नए नियम में लिखा है, रोमियो की पत्नी में पाप के द्वारा शक्ति दूर की जा सकती है कि हम आगे पाप में दास ना रहें। Do you realize you can be free from the devil's power today? और आप परमेश्वर के शैतान को हरा सकते हैं। And a new king has come. और नया राजा बन गया। After Saul had died, David became king. सोल के बाद डेविड एक नया राजा बना। And I believe that David is a picture of the Lord Jesus, who becomes king of our hearts. और हम देखते हैं कि मेरे जहन में कि पर यीशु मसीह हमारा सृष्टि का राजा है जो हमारे दिलों पर राज्य करता है। It says in the book of Ephesians, और इफिसियों की पुस्तक में साफ-साफ लिखा है, you serve the one who rules over evil, the spiritual forces of evil. आप अपनी सेवा आप अपने काम में कर परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उससे पाप के भागीदार नहीं बने। You see, Satan rules in the hearts of people who do evil. और शैतान आपके दिलों में वास करते हैं जो पाप की जिंदगी बिताते हैं। But now we can have a new king, the Lord Jesus Christ. और अब हमारे पास नया राजा है जिसका नाम यीशु मसीह है। Samuel the prophet anointed David as the new king. और सुलेमान ने राजा को अभिषेक किया, दाऊद राजा। And King David conquered every enemy after King Saul had died. और साउल के मरने के बाद दाऊद ने बहुत सारे लोगों को मार गिराया जो उसके दुश्मन थे। Now David wasn't perfect. दाऊद भी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं था। But Jesus is. लेकिन मगर यीशु पूरी तरह से परिपूर्ण थे। And David was from the tribe of Judah. और दाऊद यूदा के गोत्र का था। And so was the Lord Jesus from the tribe of Judah. और इसी तरह से मसीह भी यूदा यहूदी के गोत्र में से था। And David conquered every enemy. और दाऊद ने बहुत सारे दुश्मन को मार गिराया, सभी दुश्मनों को मार गिराया। And God said to David, your son can build a temple. और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा पुत्र सुलेमान बेटा एक मंदिर का निर्माण करेगा। David was a man of war. Solomon was a man of peace. दाऊद योद्धा था और सुलेमान शांति, उसका अर्थ शांति था। If we take David and Solomon together, we get a picture of Jesus. अगर हम दाऊद और सुलेमान को एक साथ देखते हैं तो हमें यीशु मसीह का चित्रण दिखाई पड़ता है। David, the conqueror. दाऊद जो योद्धा है। And Solomon,
the man of peace. और सुलेमान जो शांति का प्रतीक है, And Solomon builds the temple of God. सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर का निर्माण किया And Jesus builds his church. और इसी तरह से यीशु मसीह ने अपने चर्च का निर्माण किया And he says, we are the temple of God. हम सब परमेश्वर के यीशु मसीह के मंदिर हैं। Do you realize you are the temple of God? आप सोच सकते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। God doesn't live in buildings. परमेश्वर बिल्डिंग्स में इमारतों में नहीं रहता है, He now lives in his people. मगर वो आपके लोगों के बीच में रहता है। So Solomon built a beautiful temple in Jerusalem. सुलेमान ने एक बहुत सुंदर मंदिर का जेरूशलेम में निर्माण किया And he copied the plan that Moses had used in the wilderness of the tabernacle. जो मूसा के तंबू के की तरह का नकल थी। And the tabernacle was just like a tent in the wilderness. और तंबू जो कि बिल्कुल मूसा के की तरह से की नकल बनाई गई थी। And when the Israelites moved through the wilderness, they took the tent with them. और जब इजरायली लोग वहां से आगे बढ़े तब वो परमेश्वर के तंबू में स्थापित आने लगे। And the Lord Jesus, when he came to earth, he just came in a kind of, it was as if he had a tent. His body was like a tent. यीशु मसीह भी इसी तरह से हैं, उनका शरीर तंबू की तरह है। He lived amongst us for a few years. वो अपने लोगों के साथ बहुत दिनों तक रहे। But then he went back to the Father. और उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ चले गए। The tabernacle was temporary for a short time. तंबू थोड़े समय के लिए ही, वेदी थोड़े समय के लिए ही थी। But now the temple is in heaven. मगर अब वेदी जो है परमेश्वर के स्वर्ग में है। And it says in the last book in the Bible, the book of Revelation, और जो अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में है, that God and Jesus are the temple. ये बताता है कि परमेश्वर और यीशु एक मंदिर के समान है। And all believers in Jesus were part of their heavenly temple. और जो परमेश्वर के अंदर समाते हैं वो पवित्र नमूना बन जाते हैं। So you must read it for yourselves. Revelation chapter 21. It's a wonderful chapter. मैं कहना चाहता हूं आप प्रकाशित वाक्य 21वां पाठ स्वयं अपने आप पढ़ें। ये बहुत ही अच्छा अध्याय है। Paul says to the believers, don't you know you're the temple of God? और इसमें लिखा है कि आपको पता नहीं क्या आप परमेश्वर के मंदिर हैं? God made us that we should enjoy him. और परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसमें आनंदित हों। God made us so we could worship and love him. और परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि हम उसकी आराधना स्तुति करने वाले बने। And this is a wonderful revelation from God. और ये प्रकाशित वाक्य में है। And God dwells in our hearts. परमेश्वर आपके दिलों में वास करता है। He is in us
and we are in him. और वो हम में है और हम उसमें हैं. The Lord Jesus said to the Jews, I'm going to destroy the temple and raise it up in 3 days. और उन्होंने यहूदियों को कहा, मैं मंदिर 3 दिन में गिरा दूंगा और तीसरे दिन फिर उसको खड़ा कर दूंगा. And they thought he meant all the buildings in Jerusalem. He was going to destroy them. और वो सब सोचने लगे कि ये बिल्डिंग्स के बारे में, इमारतों के बारे में समझ रहे हैं. But Jesus meant his own body. मगर यीशु मसीह अपने शरीर के बारे में बता रहे थे. That's in John chapter 2. Pastor, please repeat. That's in John chapter 2. और यूहन्ना 2 में लिखा है. But after 3 days, Jesus rose from the dead. So his temple had come back to life again. और उसमें लिखा है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं उसे नष्ट करके फिर से खड़ा कर दूंगा, तीसरे दिन फिर से खड़ा कर दूंगा. And each believer is a living stone in the temple of God. और सभी विश्वासी परमेश्वर के जीवित पत्थर हैं. That's why we must be pure and holy and clean. और इसलिए आपको पवित्र और साफ रहना है. Solomon built his temple on a mount called Mount Moriah. और सुलेमान ने एक सुंदर मंदिर बनाया जिस पर्वत का नाम था सुमाया. And that was the place where God tested Abraham. और ये वो पत्थर है जहां पर परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली. In Genesis chapter 22. और ये कहानी उत्पत्ति 22 में लिखी हुई है. He said, sacrifice your son to me, sacrifice Isaac to me. और इसमें लिखा है कि तुम इज़ाक को अपने बेटे को बलिदान करो. God wanted to see if Abraham would give him everything. और परमेश्वर देखना चाहता कि इब्राहिम सारी चीजें मुझे दे सकता है या नहीं. And when Abraham was about to kill Isaac, the angel said, stop. और जब तुरंत जब वो इब्राहिम अपने बेटे इज़ाक को मारने ही जा रहा था, उसी समय फरिश्तों ने उसे रोक लिया. And God was pleased with Abraham because he had obeyed. और परमेश्वर बहुत आनंदित है क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया. So when Solomon builds his temple, he builds it in the same place, Mount Moriah, covering the area. जब सुलेमान ने पर्वत पर सुमारिया पर्वत पर भवन बनाया जिस तरह से मूसा ने बनाया था. And when the Lord Jesus was crucified just outside Jerusalem, that was a picture of total obedience. और इसी तरह से यीशु मसीह ने उसी स्थान के निकट मृत्यु को प्राप्त किया, अपने स्वर्ग पिता की आज्ञा का पालन किया. You could say the temple was built in a place of total surrender. मंदिर का अर्थ पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना है. We can only really worship God when we wholly and completely surrender to him. और हम अब उसकी आराधना करें और इस तरह से करें कि हम भी पवित्र बन जाएं और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें. I encourage you to read and study these things for yourself. और आप ये सारी चीजें अपने आप पढ़ लें. The next great event in the history of the temple
और दूसरी ऐतिहासिक घटना David counted all the people. दाऊद पाप के द्वारा पड़ गया, But he did it out of pride. और गर्व के समान उसने इसको माना, And God wasn't pleased with David. और इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं था, And a great plague, an epidemic came upon the land. और इस तरह से वहां एक बड़ा सा महामारी प्लेग के रूप में आ गया। And David repented of his sin of pride. और दाऊद ने अपने पापों की क्षमा मांगी, पश्चाताप किया। And God told David to build an altar to worship God. और परमेश्वर ने डेविड से कहा कि तुम एक वेदी बनाओ। And he purchased this threshing floor where they used to thresh the wheat. और सफेद खलीना खरीदा। And that's where the temple was built, in the place of where wheat is separated from the straw, from the waste. और इस तरह से उसने हम pardon pastor please repeat. Okay, they built the temple in the place of the threshing floor, and that's where you separate the wheat and the bad, the straw, the waste. Okay, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण बनाया जिसका फर्श जो भूमि थी वो फूस से बनी हुई थी। And that is, John the Baptist said of Jesus that he would come like someone threshing the wheat, cleaning the wheat. और यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा हम मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आए हैं और हमारा, it says he'll baptize you in the Holy Spirit. और हम प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं। God wants us to be part of his temple. परमेश्वर हमें अपने मंदिर के अंदर रखना चाहता है। But he wants to take away all things in our life which spoil us. मगर वो चाहता है कि जो पाप की जीवन है जो हमें बर्बाद करता है उसे निकाल सके। He wants to separate the good and the bad in us. और परमेश्वर चाहता है कि हमें अच्छा और बुरा। So the Lord listened to David's prayer. और परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुन लिया। And the plague stopped. और महामारी खत्म हो गई। When Jesus died on the cross, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी, it brought an end to the power of the plague of sin. और परमेश्वर ने पाप की महामारी को दूर कर दिया। For everyone who puts their trust in Christ, sin can stop. Amen. जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करेगा पाप का अंत हो जाएगा। It breaks the devil's power. और वो शैतान की ताकतों को नाश कर देता है। When we come to the cross, God cleanses us. जब हम प्रभु के क्रूस के सामने आते हैं वो हमें पूरी तरह से पवित्र कर देता है। He takes away all the straw, the waste from our life. और परमेश्वर हमारी जिंदगी से सारा भूसा जो बेकार चीजें हैं निकाल देता है। Where I live, every Friday, a big lorry comes down my road. और मैं जहां रहता हूं आज शुक्रवार को एक बड़ी सी गाड़ी
ट्रक वहां पर आता है and they take away all the rubbish, all the rubbish. और हर शुक्रवार को वहां से कूड़ा सारा इकट्ठा कर ले जाता है And that's what the Holy Spirit wants to do in me and in you. और वो मेरे और आपके यीशु मसीह हमारे जीवन में ऐसा ही करता है When Solomon dedicated the temple to God, the fire of heaven came down. और जब सुलेमान ने मंदिर को अभिषेक किया तो बहुत बड़ी अग्नि उसके ऊपर उतर गई That's in 2 Chronicles chapter 7. और हम इसे देखते हैं दूसरा इतिहास 7वें पाठ में And the people worshipped and praised the Lord. और लोग प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा गाने लगे That's 2 Chronicles chapter 7 verses 1 to 3. और ये हम देखते हैं दूसरा इतिहास 7वां पाठ 1 से लेकर 3 अध्याय में And the people said, "He is good. He is good." और लोग चिल्लाने लगे कि वो बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छा है And his mercy goes on forever. और उनकी दया हर समय की है Oh, it's such a wonderful story how God can cleanse our hearts and make us new people. और परमेश्वर बहुत अच्छी स्टोरी है देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देता है I've told you before that when they are purifying gold, they heat it up, they heat it up. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम सोने को शुद्ध करते हैं तो उसे पकाते रहते हैं And then they clear off all the impurities. They clear off the impurities. और उसके बाद गंदगी उसमें से निकालते रहते हैं और साफ करते हैं And they keep heating it up, heating it up. और फिर और हीट करते हैं और उबालते हैं और आग लगाते हैं And then when the man who's purifying it, when he can see his own face in the gold and shining in the gold, he knows it's ready. और उसके बाद जब वो देखते हैं कि जब पूरी तरह से शुद्ध हो गया है तो वो अपना चेहरा भी उसके अंदर देख सकते हैं When Jesus sees his face in me, he knows he's done something wonderful. यीशु मसीह मेरे शक्ल को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं शुद्ध हूं Our goal in life is to be like Jesus. हमारा सोना परमेश्वर यीशु मसीह की तरह चमकना चाहिए The day of Pentecost was the birthday of the church. पेंतिकोस्ट यीशु मसीह के चर्च का जन्मदिन है Fire came down from heaven. आग की जीप स्वर्ग से उतरी The glory of God fell. परमेश्वर की महिमा गिर गई And everybody could hear them all speaking in new tongues, new languages. और लोग परमेश्वर की स्तुति करते रहे उन्होंने कहा और लोग उन्हें देखकर सुनने लग गए What was God doing? और कह रहे हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है He was getting living stones for his temple. और वो एक जीवित पत्थर अपने भवन के लिए हैं It's a wonderful, wonderful story. ये बहुत ही अच्छी एक मधुर कहानी है At the end of 2 Chronicles, in chapter 36, we read about King Cyrus. 36 में देखते हैं साइरस राजा के बारे में बताया जाता है And God, he was a Persian king. और जो एक बहुत ही बड़ा राजा था And he conquered the Babylonians. और उसने बेबीलोन को हराया And he told the Jews to go and rebuild the temple. और उसने लोगों को कहा कि तुम दोबारा मंदिर का निर्माण करो If you read the last chapter of अगर आप 2 Chronicles,
और दूसरे क्रॉनिकल्स में देखेंगे तो he said, go back home and rebuild the temple. उसमें लिखा है जाओ अपने घरों को और दोबारा मंदिर का निर्माण करो. And then the next book to 2 Chronicles is the book of Ezra. और उसके बाद हैजरा की पुस्तक आती है. And it has the same words as it says in Chronicles. King Cyrus says, go home, go home. साइरस राजा हैजरा की पुस्तक में कहते हैं जाओ जाओ अपने घर लौट जाओ. Rebuild the temple. दोबारा मंदिर का निर्माण करो. We as the followers of Jesus are called to build his church. हम परमेश्वर के अनुयायी हैं. हमें परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम अपने चर्च का निर्माण करो, मंदिर का निर्माण करो. A great temple for God. परमेश्वर का महान अद्भुत मंदिर. But it's not a building. It's not a वो एक building. इमारत नहीं, It's the people. वो लोग, People from every country, every part of the world. और सारे लोग सारे देशों के अन्य अन्य जाति के लोगों को. And they'll make a beautiful temple in New Oh. Jerusalem for God. उनके द्वारा एक बहुत सुंदर जेरूसलम का निर्माण करो. Just one more thing. Let me look at some life lessons we can learn from 1 and 2 Chronicles. और हम छोटी सी बात इन पहला और दूसरा इतिहास से देखते हैं. When you read any book in the Bible, ask yourself some questions. जब आप कोई भी किताब बाइबल से देखते हैं तो आपको हमेशा अपने आप में कुछ प्रश्न का अंदर होना चाहिए. You can say, what does this book teach me about God? और मन में हमेशा ये प्रश्न होना चाहिए कि ये हमें क्या शिक्षा देती है. What does it teach me about Jesus or the Holy Spirit? और हमें क्या पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के बारे में सिखाती है. Let me give you an example. और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं. At the beginning of 1 Chronicles, there is a list of names. Names and names and names. और पहला क्रॉनिकल्स इतिहास में एक सूची दी हुई है, बहुत लंबी सूची है, नाम, बहुत सारे नाम. And somebody said that shows that God knows each of us by name. और बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह हमारे सारे नामों को जानता है, सबों के नामों को जानता है. Can you believe that God is interested in you? आप क्या सोचते नहीं है कि परमेश्वर आप पर आप को प्यार करता है? Well, we are his children. हम उसके बच्चे हैं. So why should he not be interested in us? Because he loves us. हम क्यों ना उसके तरफ आकर्षित हों, क्योंकि वो हमें प्यार करता है. We read in 1 Chronicles chapter 8 that some of the people were singers. और दूसरा इतिहास 8वें पद में लिखा है कि वो हमसे प्यार करता है. Some of the people did different jobs, different work. और हम देखते हैं कि अन्य लोग अन्य भिन्न काम करते हैं. So this is like my second question. What does this book teach me about people? और दूसरा प्रश्न मेरे लिए होता है कि ये किताब मुझे क्या, ये पुस्तक मुझे क्या दूसरों के बारे में सिखाती है. Here's a big thing for you to take in. We are. और ये बहुत बड़ी प्रश्न है जो आपके अंदर होने चाहिए. We've all got a job to do for Jesus. ये हम सबों के पास एक काम है जो हमें यीशु मसीह के लिए करना है. We've all got a part to play. और हमें सबों को एक पार्ट, एक नाट्य करना है. I was in one church and every week the church was so blessed, so blessed.
एक मैं चर्च में था जो हर हफ्ते पूरी तरह से आशीषित होता था। And then we found there was this old lady who used to pray and pray and pray. और मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। And then she went to be with Jesus. और कुछ दिनों बाद वो यीशु मसीह के पास चली गई। And I believe all the blessing was coming to the church because she was praying and praying. और क्यों मैं सोचता हूं कि सारी आशीषें कि उस स्त्री के द्वारा होती थी, क्योंकि वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी उस भवन में। She wasn't a singer and she wasn't a preacher. और वो एक प्रीचर नहीं थी और ना ही सिंगर थी। But she was a prayer. मगर वो प्रार्थना की योद्धा थी। So that's a good question to ask. What does this book or this passage teach me about people? और मैं उससे देखना, ये हमें प्रश्न रखना चाहिए कि ये लोग इस टिप हमें क्या शिक्षा देते हैं। You read about in 1 Chronicles chapter 8. और हम इसे देखते हैं पहला इतिहास और 8वें पद में। David said, I'd love a drink of water from the wells in Bethlehem. That was his own town where he was born. Amen. और वो कहता है कि मैं उस कुएं का पानी बहुत पसंद करता हूं जहां पर मैं पैदा हुआ था, बैतलहम में। But David was fighting a battle with his enemies, so he couldn't just go to Bethlehem because the enemy were there. ना वो वहां इसलिए नहीं जा पाता था क्योंकि वो अपने दुश्मनों से बहुत युद्ध कर रहा था। But some of his soldiers heard the king say he wanted a drink of water. और कुछ सैनिकों ने सुना कि उसका राजा दाऊद वहां का बैतलहम का पानी पीना चाहता है। So some of the brave soldiers, they crept through the enemy lines and they got water and brought it back to David. और कुछ बलवान और सैनिक वहां जाकर बैतलहम में और दाऊद के लिए पानी लेकर आ गए। They would have been killed if they'd have been caught by the enemy. और उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर वो पकड़े गए तो वो अपने दुश्मन से के हाथों मारे जा सकते हैं। But David, he said, this water is so precious. It's the price of these men's blood. और वो कहता है ये बहुत ही कीमती पानी मेरे लिए जीवन में है। And he offered it to God. He poured it out on the ground. He offered it to God. और उसने परमेश्वर को उसको अर्पित किया और पृथ्वी पर बरसा दिया। But these men were showing that they loved David with all their heart. और ये सब चीजें उन सैनिकों को दर्शाती हैं कि वो कितनी अच्छी तरह से अपने राजा से प्यार करते हैं। Is there anyone in your life you would do that for? आप में से कोई है जो परमेश्वर के लिए ऐसा करना चाहेगा? What would you be willing to do for Jesus? क्या अपने जीसस के लिए आप करना चाहेंगे? What am I willing to do for other people to hear about Jesus? किस तरह से परमेश्वर के बातों को दूसरों तक पहुंचा सकेंगे? What did Jesus do? Because he loved us, he poured out his own life. और परमेश्वर कितना प्यार करता है कि उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। I could go on all day. There's so many lessons we can learn in this book. और मैं कितना सरप्राइज हूं कि मैं इसमें से बहुत सारे इस अध्याय में से बहुत सारी चीजें बता सकता हूं। I'll just give you 2 more short examples. और मैं छोटे-छोटे 2 उदाहरण और देना चाहता हूं। When they brought the Ark of the Covenant
the chest with the commandments in. When they brought it back, David saw it. और उन्होंने एक आर्क का निर्माण किया That's जो what कि दाऊद ने बनाया था. 1 Chronicles chapter 15. पहला इतिहास 15वें अध्याय में लिखा हुआ है. It says David danced before the Lord. पर लिखा है कि दाऊद बहुत खुशी से आनंद होकर नृत्य करने लग गया. Even his own wife thought he was mad. और उसकी पत्नी भी ये सोचने लगी कि ये पागल हो गया है. But he wasn't ashamed to praise God. मगर उसने कुछ नहीं शर्माया क्योंकि वो परमेश्वर की आराधना करना चाहता था. We must never be ashamed to praise our God. हमें कभी भी शर्म नहीं खाना चाहिए जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं. Let us copy David and praise and rejoice in him. और हमें दाऊद की नकल करना चाहिए जिस तरह से वो करता था, परमेश्वर की स्तुति और आराधना. Whatever people think about us, it doesn't matter. चाहे लोग कुछ भी कहें, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए. It says in the New Testament, here's another question. Was there an example to follow? We can follow the example of David. और ये नए नियम में हमें उदाहरण के बारे में बताया जो हम उदाहरण दाऊद के लिए देते हैं. Or is there a command to obey? और हमारी आज्ञा है कि हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए. Well, in the New Testament it says, be filled with the Spirit. और नए नियम में लिखा है कि तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना चाहिए. And in 2 Chronicles 7, when Solomon prayed, the fire from heaven came down. दूसरा इतिहास 7वें पाठ में लिखा है कि वो जब वो मंदिर को अभिषेक कर रहा था तो अग्नि उसके ऊपर उतर गई. On the day of Pentecost, when they prayed, the tongues of fire came down. और जब इसी को हम नए नियम में देखते हैं, जब पेंतिकोस्त का दिन था, वो लोगों के ऊपर अग्नि, जीप की अग्नि सी उतर गई. I think God is telling us we should burn and shine for Jesus. और हमें परमेश्वर के लिए प्रकाशमान होना चाहिए. We should be light in the world, burning for Jesus. और हमें प्रकाश देने वाली मशाल होनी चाहिए. Then the last thing we are told in 2 Chronicles 7 verse 14. 7वां पाठ और 14वीं आयत में लिखा है. Is there a command to obey? लिखा है क्या ये आज्ञाकारी होने के लिए है? It says, humble yourselves before God. और क्या लिखा है कि अपने आप को नम्र बना लो. Pray and turn from all sin. प्रार्थना करो और सारे पापों से दूर हो जाओ. God will hear. परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा. And God will answer. और आपकी चीजों को उत्तर देगा. And he'll pour out the blessings in your land. और वो आपके भूमि को आशीषित करेगा. In your family. आपके परिवार को. In your church. आपकी कलीसिया को. The example is to obey completely. और ये उदाहरण पूरी तरह से आज्ञाकार का है. Jesus is alive. He's ready to bless you. Pardon, Pastor? Jesus is alive and he's ready to bless you. वो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो आपको आशीषित करना चाहता है. I'm just going to pray. अब मैं आपको के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं.
So let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। We thank you, Heavenly Father, परमेश्वर आपका धन्यवाद देना, स्वर्ग पिता आपका धन्यवाद करना चाहता हूं that every page of your precious word has a lesson for us to learn. और हर पृष्ठ आपके पवित्र बाइबल में हमें सीखने को मिलता है। We can see Jesus on every page. हम हर पृष्ठ में यीशु मसीह के चित्रण को देखते हैं। I pray for my brothers and sisters. Hallelujah. मैं Hallelujah. अपने भाइयों और बहनों के Thank लिए you, Jesus. प्रार्थना करना चाहता हूं Help us to be faithful in all that we do. और सभी आज्ञाकारी और विश्वासी बने। We need your help, Lord, हमें आपकी मदद चाहिए परमेश्वर, and we ask for it in Jesus' name. और ये मांगता हूं हमारे पर यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। Amen. 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 What a joy to hear wonderful teaching. Yes, Pastor. We thank the Lord for Pastor Keith. परमेश्वर पास्टर कीथ के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के नाम पर। We thank God for Pastor Henry, who translated so well. Amen. और Amen. परमेश्वर पास्टर हेनरी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्होंने अच्छी तरह से इसको ट्रांसलेट किया। We thank the Lord what we learn from God's word. हम धन्यवाद करते हैं जो कि परमेश्वर ने आपने हमें इन अध्यायों में सिखाया। First and Second Corinthians talks about Jesus is the King who will rule forever and forever. Amen. पहला Amen. और दूसरा इतिहास में परमेश्वर ने हमें आज सिखाया कि वो हमारा राजा है, हमेशा अनंत काल का राजा। We learn that when we study a book or a passage, we ask these questions. और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए जब भी हम कोई भी प्रश्न पढ़ते हैं कि ये तीन चीज हमें उसमें से प्रश्न को याद रखना है। Number one, what is that teaching about God, Jesus, Holy Spirit? पहली बात कि हमें इस प्रश्न से हमें क्या पवित्र आत्मा के बारे में सिखाया जा रहा है। What is that teaching about people, their example? और दूसरे उदाहरण हमें क्या इन व्यक्तियों के बारे में मिलता है। And is there any command we need to obey? और तीसरी बात कि हमें कौन सी आज्ञा है जिसे हमें माननी चाहिए। And then obedience, of course, bring blessing. Amen. और Amen. आज्ञाकारी बनने से आशीष मिलती है। One of the blessing that if my people who are called by my name, अगर मेरे लोग मेरे नाम से पुकारे जाएंगे तो they humble themselves and pray, अगर वो नम्र होकर और प्रार्थना करेंगे, then I will hear from heaven, और मैं स्वर्ग से सुनूंगा, and then I will heal their land, और forgive मैं their sin and heal their land. और उनके पापों को क्षमा करूंगा और उसको उनकी पृथ्वी पर आशीष बरसाऊंगा। So God said, if my people who are called by my name अगर मेरे लोग मेरे नाम से जाने जाएंगे तो humble themselves and pray, दयावान बने और नम्र बने और प्रार्थना करें। so the command is humble ourselves and pray. Amen. हमें याद रखना चाहिए क्या आज्ञा है कि हमें नम्र बनना है और हमेशा निरंतर प्रार्थना करना है। And God said, I will hear from heaven and forgive their sin and heal their land. और मैं आज स्वर्ग से सुनूंगा आपकी बातों को और आपकी पृथ्वी को ज्यों का त्यों कर दूंगा। So when humility comes, prayer comes, then healing comes in our lives and healing Amen. comes in the land. Amen. और जब Hallelujah. हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है और हमारे जीवन में आशीष करता है और हमारी पृथ्वी को भी त्यों का त्यों कर देता है। We need, healing in our bodies, in our
in our families, in our land. और हम चाहते हैं कि हमारे अंदर और हमारे परिवार के अंदर और हमारी पृथ्वी के अंदर चंगाई हो सके। आमेन। So we thank the Lord for his promises. Amen. परमेश्वर का Amen. धन्यवाद करते हैं उसकी उनके वायदों के लिए। So thank you for joining us. थैंक यू सभी लोगों के हमारे साथ बने रहने के लिए। And God bless you and study these books. Amen. और आप इन सब अध्यायों को पढ़ें और आशीष पाएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Amen. थैंक यू So, पास्टर। Pastor Henry, let's stay in touch and keep us Yes. posted. Yes. Yeah. Thank and you. we keep you in our prayer. Continue pray. Continue pray. Pastor. Sure. God Okay. bless you. God bless you. Bye. Take care. Bye. Bye.